Good afternoon, everyone. I'd like to call this hearing to order. I want to welcome you to today's hearing on citizenship, laws, and religious freedom. I would like to thank our distinguished witnesses, whom I will introduce momentarily, for joining us today and offering their expertise on this topic. I'd also like to take the opportunity to thank Senator Joe Manchin and his office for securing this hearing room for us today. As many of you are aware, the U.S. Commission on International Religious Freedom, or commonly referred to as USCIRF, is an independent, bipartisan U.S. government advisory body that was created by the 1998 International Religious Freedom Act. Now, the Commission monitors the universal right to freedom of religion or belief abroad, using international standards to do so, and based upon what we observe and what we find, we make policy recommendations to Congress, to the President, and to the Secretary of State. Today, USCIRF exercises its statutory authority under the International Religious Freedom Act to convene this hearing. Now, today's topic has garnered much recent international attention. The use of restrictive citizenship laws is, however, a long-standing concern protecting individuals' freedom of religion or belief. Now, we have convened this hearing to explore how some governments leverage citizenship laws as a tool of oppression against religious minorities, and to help us develop policy recommendations for the U.S. government in response to these actions. The right to a nationality is a fundamental human right and serves as a bedrock for accompanying political and civil rights. It is the right to have rights. Denying individuals this fundamental recognition not only strips them of accompanying rights, but also denies them the ability to participate in the political process and use legal pathways to seek redress for discrimination and persecution. These individuals are effectively rendered stateless. This makes them vulnerable to exploitation, prolonged detention, and it exposes them to violence. In this way, the denial of citizenship can be a key predictor of mass atrocities. Therefore, it merits international attention. Too often, the denial of citizenship targets minority communities already vulnerable to oppression and persecution. Hello, welcome to Legal Awareness web series. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके भारत में पिछले चंद महीने से कंट्रोवर्सी रही, एनआरसी को लेके भी बड़ी एंग्जाइटीज़ रहीं। सरकार और जो लोग सीएए के सपोर्टर्स थे वो इसको मेरे ख्याल से कुछ बहुत लाइटली ले रहे थे। देखिए, ये बात सही है कि डोमेस्टिक लॉ का मामला है और एक भारत के सिटीज़न होने के नाते मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारे देश की बात विदेशों में हो, और अगर विदेशों में हो उसमें हमारा क्रिटिसिज्म हो। इससे देश की जो एक प्रेस्टिज है उसको बड़ा धक्का लगता है, और मुझे पूरा यकीन है कि एक्सट्रीम राइट भी देशभक्त है और उनको भी ये बुरा लगता होगा कि ये हमने क्या करा जिससे ये इशू इंटरनेशनलाइज हो गया। अब जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन इन सारे मैटर्स में वही है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरनल मैटर है, किसी को बोलने का राइट नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, तो जो लोग एडवाइस करते हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये 1920-1930 की दुनिया नहीं है, ये 2020 की दुनिया है। और 1930 की भी दुनिया में क्योंकि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, जेनोसाइड हुआ यहूदियों का जर्मनी में, तो आप देखिए लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गया, यूनाइटेड नेशंस आया। और अब अगर यूनाइटेड नेशंस भी ये काम नहीं कर पाएगा तो कोई और बॉडी आएगी। अब 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इंडिया की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, एनआरसी पर और रोहिंग्यास के मसले पर म्यांमार के हियरिंग की।
अब हमारी पोजीशन आमतौर से ये रही है कि भाई हम ये इसको भारत के मामलात में इंटरफेरेंस मानते हैं। हमने अभी तक USCIRF को इंडिया में आने की परमिशन नहीं दी कि वो इंडिया में आके देख लें, उससे भी थोड़ी हमारी बेइज्जती होती है। पहले जरा सा समझ लेते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। ये जो बॉडी है US कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये कोई ऑर्डिनरी नॉन गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है जिसको हम एकदम ब्रश असाइड कर देंगे। ये बॉडी बनी है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत। ये US गवर्नमेंट की बॉडी है, ये कांग्रेस की बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टिजन फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन है। इसकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाएंगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएंगी, कांग्रेस के पास जाएंगी। और मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि जो लोग इस कमीशन में हैं उनमें काफी लोगों जो हैं वो सरकार के ही नॉमिनेटेड है। अब आप देख लीजिए कि कमीशन जो है उसमें 9 कमिश्नर हैं। 9 कमिश्नर में से 3 कमिश्नर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ द प्रेसिडेंट यानी रिपब्लिकन पार्टी के 2 होंगे, और 4 जो हैं वो उस पार्टी के होंगे जो व्हाइट हाउस में नहीं है। जैसे अभी रिपब्लिकन व्हाइट हाउस में है तो 4 डेमोक्रेटिक पार्टी के होंगे। अब आप ये देखिए, जो कमीशन के चेयर हैं टॉनी पेर्किन, वो अपॉइंटेड हैं सीनेट मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर मैकनॉयल हैं उनके नॉमिनी हैं, यानी ये रिपब्लिकन के नॉमिनी हैं। फिर उसके जो वाइस चेयर हैं गेल मैकेन, ये अपॉइंटेड हैं सीनेट की माइनॉरिटी पार्टी का लीडर यानी डेमोक्रेट्स का। और उसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट जो मौजूद थे इस हियरिंग में, नदीन मेजेन, ये ट्रंप ने अपॉइंट किया है इनको। गैरी एल बोयर, ये कमिश्नर हैं, ट्रंप ने इन्हें अपॉइंट किया है। तो अनुप्रिया भार्गव, इनको नैन्सी पेलोसी ने, जो डेमोक्रेट्स हैं, हाउस लीडर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, उन्होंने अपॉइंट किया है। तो ये बॉडी जो है ये एक बड़ी पावरफुल बॉडी है। एक यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर होता है, US एम्बेसडर इंटरनेशनल एट लार्ज ऑन रिलीजियस फ्रीडम। हम इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर चुके हैं क्योंकि हमने डोमेस्टिकली इसको सही से हल करने की कोशिश नहीं की। इतनी प्रोटेस्ट होती नहीं, लेकिन हमने प्रोटेस्टर से बात करना नहीं मुनासिब समझा। हमारी कोर्ट्स ने भी उसको वो अहमियत नहीं दी जितनी अहमियत दे के इसको हल कर लेना चाहिए। एक सिटीजन की हैसियत से, एक भारतीय की हैसियत से घर की बात घर में रहनी चाहिए थी, हमको इसका घर में हल करना चाहिए था। मैं अभी भी भारत सरकार के स्टैंड से ही एग्री करूंगा, लेकिन मजबूरी है कि इंटरनेशनल लॉ बदल गया है। आज ह्यूमन राइट्स डोमेस्टिक मैटर नहीं माने जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो कमीशन है, इस कमीशन की कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स में हम जो हैं कहां आ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो कमीशन जो है वो 2 लिस्ट बनाता है। एक लिस्ट बनाता है जिनको वो कहता है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जिनके बारे में कमीशन का ये व्यू होता है कि उन कंट्रीज में सिस्टमैटिक, ऑनगोइंग, इग्रीजस वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम हो रही हैं, परसिक्यूशन वहां होने जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो वो सीरियस मैटर्स हैं। इसमें 16 कंट्रीज की लिस्ट है 2019 की, जिसमें म्यांमार है, चाइना है, ईरान है, नाइजीरिया है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, सऊदी अरबिया है, सूडान है, सीरिया है। अफसोस की बात यह कि पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूअसली हम लोग भी टियर 2 में हैं। टियर 2 का मतलब यह कि हम वॉच लिस्ट में हैं। इसका मतलब यह है कि अभी हमारे हालात उतने खराब नहीं हुए जितने कैटेगरी 1 में जो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है वहां है, लेकिन फिर भी हम एटलीस्ट एक कोई रिक्वायरमेंट जो है वो सिस्टमैटिक, ऑनगोइंग, इग्रीजस वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम मीट करते हैं। ये जो शब्द है इग्रीजस, कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, इसकी मैं अहमियत बता दूं। बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह शब्द इस्तेमाल किया है 1992 में, जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था।
यानी भारत की खुद हाईएस्ट कोर्ट ने यह माना कि 1992 में जिस तरह से मस्जिद गिराई गई वो एक बहुत बड़ी रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन थी। हमारी कोर्ट ने खुद माना कि 1949 में बाबरी मस्जिद विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें जिस तरीके से मूर्तियां अंदर रख दी गईं, उससे मुसलमानों का जो वो प्लेस ऑफ वर्शिप था उसे उन्हें डिप्राइव किया गया। तो यहां पे भी ये बात है कि टियर 2 में आप भी कम से कम एक शर्त जो है वो कैटेगरी, जो 1 कैटेगरी है ऑफ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, उसको मीट करते हैं। और यहां पे आपकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स, और उसमें यह लिखा हुआ है कि जो आपके यहां भी नेचर और एक्सटेंट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है वो देखी जानी चाहिए। गवर्नमेंट उसमें इनफ एक्शन नहीं ले रही है। इस लिस्ट में 12 कंट्रीज हैं। कौन है हमारे साथ? मैं बार बार कहता रहा हूं कि मैं इंडिया को देखना चाहूंगा फिनलैंड के साथ, स्वीडन के साथ, नॉर्वे के साथ। मेरे साथ इन कंट्रीज के साथ बैठना पड़ रहा है रिलीजियस फ्रीडम में। अफगानिस्तान रहना चाहते हैं आप कह रहे थे वहां पे कि वहां रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है इसलिए हम सिटीजनशिप दे रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें अफगानिस्तान के साथ देखती है, बहरीन के साथ देखती है जहां शियाओं के साथ जुल्म हो रहा है, उनकी सिटीजनशिप छीनी जा रही है। कम्युनिस्ट क्यूबा के साथ देखती है, इजिप्ट के साथ देखती है, इंडोनेशिया, इराक, मलेशिया और टर्की के साथ देखती है। यानी अब बताइए, टर्की के प्रेसिडेंट भी हमें बता रहे हैं हमारे यहां क्या होगा। अरे वो पहले अपने घर को संभाल लें, इंडिया के मुसलमानों की फिक्र ना करें। इंडिया का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो इंडिया की माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए इनफ है। कभी कभी कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है स्पीड ऑफ जस्टिस में, लेकिन यह कि हमारे यहां वो हालात नहीं है जैसे टर्की में है या और किसी मुस्लिम कंट्रीज में। बार बार जो ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है वो कह रहा है कि इंडिया में 1/3 स्टेट्स में एंटी रिलीजियस लॉज, कन्वर्जन लॉज हैं। हिंदू राइट चाहता है नेशनली बन जाए। अगर ये नेशनली हम लॉ बना लेंगे तो आप समझिए हम कैटेगरी 1 में चले जाएंगे। अरे भाई, मुझे मालूम है हिंदुत्व का प्रोजेक्ट और उनके कंसर्न्स, लेकिन फिर भी भाई दुनिया बदल गई है। ऐसा काम ना करें कि देश में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना कंप्लीटली बंद हो जाए। बार बार इस कमीशन ने पिछले 4-5 साल में कहा कि हमारे यहां मॉब वायलेंस हो रही है, हमारे यहां रिलीजियस कन्वर्जन लॉज है, माइनॉरिटीज को इनफ प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। और सीएए के बारे में दिसंबर में भी उन्होंने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए। अगस्त में उन्होंने कहा एनआरसी की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से भी बहुत एक्सक्लूजन हो रहा है लोगों का। और फिर उन्होंने बार बार ये बात कही, अभी समझ लीजिए कि खुद उनके प्रेसिडेंट यहां पे थे, तब भी कमीशन ने यह कहा कि ब्रूटल एंड अनचेक्ड ग्रोइंग वायलेंस दिल्ली में हुई और उसको पुलिस ने रोका नहीं, और पुलिस का भी ये इंडिक्टमेंट हो गया। भाई दुनिया बदल चुकी है, इस बदलती हुई दुनिया को समझें। अब आप ये देखिए कि जो प्रेसिडेंट के नॉमिनी हैं ट्रंप के, वही इस कमीशन में वाइस चेयर हैं, चेयर हैं, और वो लोग रिपोर्ट देने वाले हैं। ये बात भी ठीक है कि ट्रंप साहब आके यहां पे अपने जो है वो हथियार बेच गए और हमें उन्होंने कोई ट्रेड डील नहीं दी, और बाद में हमें ये भी कह गए शायद कि आप वहां चले जाएं दोहा में, और वो जो तालिबान के साथ सिग्नेचर हुई जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें वहां तालियां बजानी पड़ी। अब आप ये देखिए कि क्या कह रहा है कमीशन। अभी जो ये हियरिंग हुई है, कमीशन कह रहा है कि ये सीएए जो है इट कुड रिजल्ट इन वाइड स्केल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। लार्ज स्केल पे मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। अब यही मसला है कि आरएसएस में पहले लिख चुके हैं उनके एक आध लोग कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट ना करे उसको राइट टू वोट ना हो। डी वोटर का कंसेप्ट टीएन सेशन ले आए और आर्बिटरली बहुत लोगों का राइट टू वोट चला गया। फिर कमीशन ने यह भी कहा अपनी इस हियरिंग में कि भाई राइट टू नेशनैलिटी फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, इट सर्व्स एज अ बेडरॉक फॉर अकंपनिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। मैंने बार बार आपको बताया है इस चैनल पे, राइट टू जो सिटीजनशिप है इज राइट टू राइट्स। जब सिटीजनशिप होती है तब और राइट मिलते हैं। टोनी पेर्किंस जो चेयर हैं इस कमीशन के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि डिनाइंग नेशनैलिटी स्ट्रिप्स इंडिविजुअल्स ऑफ अकंपनिंग राइट्स। इससे वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और इससे वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ और परसिक्यूशन के खिलाफ लड़ाई में पीछे रह जाते हैं।
अनुप्रिया भार्गव जो इस कमीशन की कमिश्नर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो एनआरसी हुई है और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ट्रबलिंग हैं और इससे बहुत लोग वल्नरेबल हो गए हैं कि उनके प्रोलॉन्ग डिटेंशन होंगे, डिपोर्टेशन होगी, वायलेंस होगी और ये सब कुछ आसाम में हो रहा है। उन्होंने ये भी बात कही कि ये जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं, इनकी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रही क्योंकि इनको दिख रहा है कि कितनी ग्लूमी फ्यूचर उनका अवेट कर रहा है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पोजीशन है कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है और मिसलीडिंग है और ये पॉलिटिसाइजिंग द इशू है, लेकिन भैया जब आप दूसरे 3 कंट्रीज की माइनॉरिटीज के साथ कह रहे हैं कि रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है इसलिए हम उन्हें सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो हम उनके मैटर को इंटरनेशनलाइज नहीं कर रहे। ये पूरा आइडिया ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है डिस्क्रिमिनेटरी नेचर में हमारी बेइज्जती कर रहा है इंटरनेशनली। हमें इससे फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। अगर हमारे देश के बहुमत को हमने कुछ समझा दिया कि देखो बड़ा अच्छा कर दिया हमने किसी को नीचा दिखा के, तो वो अलग बात है। वाइस चेयर गेल मैकचिन ने भी एग्जाम्पल साइट की, वियतनाम की, बहरीन की, कीनिया की, और उन्होंने कहा कि बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने लोगों की सिटीजनशिप ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। अब कीनिया में जो अभी डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है उससे बहुत लोगों की सिटीजनशिप माइनॉरिटीज की जा रही है। हमारे देश के बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत बड़े स्कॉलर हैं और कम्युनल राइट्स के तो माहिर हैं ये, प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ब्राउन यूनिवर्सिटी के। इन्होंने भी इस बात पर जोर डाला कि भाई ये जो CAA है और NRC है ये बहुत लोगों को स्टेटलेस कर देगी, खासतौर से मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम भी उससे इफेक्ट होंगे। और उन्होंने ये बात साफ कही कि इसमें मामला ये होगा कि डॉक्यूमेंट्री डिफिशिट है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। चेयर ने भी ये बात कही, लेकिन होगा क्या कि इन डॉक्यूमेंट्स की डिफिशियंसी से मुसलमान इफेक्ट होंगे लेकिन हिंदूज नहीं होंगे और मुसलमानों को इंटर्न किया जाएगा, एक्सपेल किया जाएगा, डिसइनफ्रेंचाइज किया जाएगा, हिंदूज को नहीं किया जाएगा। और ये जो है ये बहुत एक तशवीशनाक और बहुत प्रॉब्लमेटिक और वरीसम साइन है। मैं ये समझता हूं कि ये बात बहुत एक सोचने वाली बात है कि हमें क्या करना चाहिए। आशुतोष वार्ष्णेय ने एक और अच्छी बात कही कि जिस तरह यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम और इक्वालिटी पे बेस्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी भारत को हिंदू होमलैंड नहीं मानता इजराइल की तरह, जैसे इजराइल ने कहा कि वो ज्यूज का होमलैंड है। भारत का संविधान भी इक्वालिटी इंक्लूडिंग रिलीजियस इक्वालिटी, डाइवर्सिटी और टॉलरेंस को मानता है। इधर चंद दिनों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बातें डाइवर्सिटी और नेशनलिज्म के बारे में कही हैं। मैं ये समझता हूं कि उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको भी और क्लैरिटी से ये बात करनी चाहिए कि हम आपस में अपने सिटीजन्स को ना बांटें। पूरी दुनिया हमें देख रही है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हमारे CAA पे बहस हो गई, डेमोक्रेसी इंडेक्स पे जो फ्रीडम हाउस लिस्ट बनाता है उसमें हम बहुत नीचे चले जा रहे हैं। भारत की रेपुटेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए, भारत का झंडा ऊंचा रहे, उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे भारत की इंटरनेशनल इमेज को धक्का लगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्लीज क्लिक करें और फेसबुक पर और ट्विटर को हमें लाइक करें। अब हमने एक ऐप बना दिया है, आप गूगल ऐप स्टोर से लीगल अवेयरनेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपके स्क्रीन पे ये नंबर आ रहा है, आप मिस कॉल दे दें, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।